Hello students, hope you all are studying and preparing for your examinations which are going to be conducted in March 2022. So here we are with a video on instructions on how to attempt your term and examinations which are going to be conducted in March 2022. So the examinations will be conducted on your LMS which you can access from the university's website. So the examination will be in online mode. This is very important thing. First of all, the exam will be in online mode and you will get an MCQ type question. All right, so MCQ, multiple choice questions will be there. The objective questions will be there which will be having 4 options and you have to choose any one correct option from them. All right, this is clear. So we'll be talking about the instructions that how you need to attempt the BVOC examinations in the March 2022. So आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपने BVOC examinations जो कि मार्च 2022 में होने वाले हैं उनको अटेम्प्ट करना है. ठीक, तो एग्जामिनेशंस जो होंगे वो आपके LMS पर ही कंडक्ट होंगे. LMS को आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. आई होप आप सभी के पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी बिकॉज आपके पास अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी हैं जो कि जिससे कि आप अपना LMS को एक्सेस करते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस और नोट्स को एक्सेस कर पाते हैं. सो एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट LMS पर ही होंगे. जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप ये एंटर कर सकते हैं www.lingyasvidyapeeth.edu.in/bvoc. आप अपने जो URL है जो कि आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 days प्रायर टू द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट. सो जो भी आपकी शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट होगी उससे 2 दिन पहले आपकी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे भी आपको URL प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने LMS को. Alright students, this is clear. So examinations LMS पे conduct होंगे. Examinations will be conducted on the LMS which you can access from university's website which is www.lingyasvidyapeeth.edu.in/bvoc. Alright, the URL will also be provided to you on your email ID and WhatsApp 2 days prior to the scheduled examination date. So this is how your portal will look like when you will enter this URL lingyasvidyapeeth.edu.in. This kind of page will open and there you have to go into the student zone. All right, so in student zone you will get this pop-up. All right, so you have to enter into the student login in it. All right, so on the page of on the website of Lingyas Vidyapeeth, when it will be opened, you have to go to the student zone and thereafter in the student login. All right, after clicking on the URL you will enter into your LMS. After clicking into this you will enter into your LMS. आप अपने LMS पे एंटर करेंगे और इस टाइप का पेज आपके पास खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन करना होगा. सो फॉर लॉगिंग इन यू हैव टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. ऑलराइट, सो ये आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है. Alright students, this is clear. So user ID and password for accessing the LMS is already available with the students. As I said कि आपके पास पहले से ही student ID और यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है क्योंकि आप क्या करते हैं उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने नोट्स को एक्सेस करते हैं, अपने वीडियोस को एक्सेस करते हैं और अपने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करते हैं. हाउएवर जो से यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको आपके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे 2 days प्रायर टू द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट पहुंचाया जाएगा. ऑलराइट, सो आफ्टर जब आप लॉग इन कर लेंगे अपने LMS पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का मेन्यू मिलेगा जिसमें कि आपको एंटर करना है अपने एग्जाम पर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कहाँ एंटर करेंगे आप? अपने एग्जाम पर. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. ठीक,
So after logging into the LMS with your credentials that have been provided to you, and that will be provided to you even before the scheduled date of examinations, you have to go onto the right panel. On the right panel, you will find an option or click button saying exam. So you have to enter in this exam tab. Alright. So after clicking the exam tab, you will see the exam schedule. आप जब एग्जाम पैनल पे अपने क्लिक करेंगे तो एग्जाम पैनल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम का शेड्यूल मिलेगा. ऑलराइट, जिसमें क्या होगा, आपका पेपर कोड दिया गया होगा, एग्जाम नेम दिया है, डेट दिया है, आपके एग्जाम का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और एक्शन दिया गया है. ऑलराइट. सो जब आपको ये शेड्यूल मिलेगा, आपको शेड्यूल आपकी स्टिपुलेटेड डेट और टाइम चेक करना है कि किस टाइम पर और किस डेट पर आपका एग्जाम है जो आपको देना है. फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर को आपका एग्जाम है 4 बजे से. सो 4 बजे से आप दिस इज एडवाइज टू यू कि आप 10 to 15 मिनट्स पहले अपना लॉग इन करें सो दैट आप लास्ट मिनट हैसल से बच सकें. Alright students, so this is advised to you to log in to your examination before earlier to 10 or 15 minutes so that you will avoid the last minute hassle. Alright, so you will find this schedule on the after entering into the exam panel, which is on the right panel on the dashboard. You will find this exam schedule, which will indicate the paper code, exam name, date, start time, end time, and action. In the action menu, you have to start the exam by clicking on this option. Alright, so when you will click onto this option which said the start examination, you will see the following screen. आप following screen, आप ये जो screen मैं अभी दिखा रही हूँ, इस screen पर पहुंच जाएंगे एग्जाम को start करने के साथ ही. So on this screen you will find general instructions which are there. Alright, so इस screen पर आपको general instructions मिलेंगे which are related to the examinations. So you have to read the general instructions very carefully. Let me read this for you also. So it is advised to appear for the exam on Google Chrome browser. आप अपने exam को Google Chrome browser से ही appear करें. It will be like available on both your laptop and mobile devices. So examinations will consist of only multiple choice question. Examination में आपके सिर्फ multiple choice question होंगे जिनके की options होंगे, and you have to choose the correct options out of these out of all the options. So each question carries 1 mark. हर question का 1 mark होगा. There is no negative marking. कोई भी negative marking आपकी नहीं है एग्जाम में. Alright, so हर question का 1 mark है. Each question has 1 mark. So candidate must complete their online examinations within the stipulated time frame as no additional time would be provided. आपको अपना एग्जाम जो है, जो ऑनलाइन एग्जाम आपका हो रहा है, stipulated time frame यानी कि जितना टाइम आपके लिए डिसाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर का आपका एग्जाम है तो इसी 1.5 आवर में आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना है. इससे ज्यादा एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा. Alright, so the duration of the exam remains unaltered irrespective of the user logging in at the correct time, start time or later during the examination. So whether अगर आपका एग्जाम 4 बजे से शेड्यूल्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 4 बजे से शेड्यूल्ड है और आपने 4:15 पर लॉग इन किया है तो एग्जाम विल एंड ऑन 4 बजे से स्टार्ट होकर एग्जाम 5:30 पर खत्म है तो और आपने 4:15 पर लॉग इन किया है. सो इट डज नॉट मीन कि आपको अब 4:15 से 1 घंटा मिलेगा. एग्जाम जो है 5:30 पर ही खत्म हो जाएगा जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है. ऑलराइट, सो कोई भी आपको एक्सटेंशन टाइम में नहीं मिलेगा. सो इट इज एडवाइज कि आप प्रायर टू द स्टिपुलेटेड टाइम अपने LMS को, अपने एग्जाम को लॉग इन कर लें. Alright, so to change an answer, simply click the desired option button. There will be 3 buttons on each screen. The use of buttons is given below. So आपको कोई भी आंसर को चेंज करना है तो आप उसी ऑप्शन को सिंपली बस चूज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपका चूज हो जाएगा. सो 3 बटन्स मिलेंगे आपको स्क्रीन पर. ऑलराइट,
जब आप एग्जाम देंगे। पहला है रिव्यू क्वेश्चंस, यानी कि आपको आंसर को क्वेश्चन मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन थे, A, B, C एंड D। ऑलराइट, 4 ऑप्शन थे आपके A, B, C एंड D। तो आप अभी आपको क्या करना है, अभी आपने ऑप्शन चूज किया C। ऑलराइट, आपने C पर क्लिक किया, बट क्या है, आप श्योर नहीं हो कि C ही आंसर है या नहीं। तो आपने इसको, यहाँ पर आपके पास रिव्यू लेटर का ऑप्शन है, आपने रिव्यू लेटर पे क्लिक कर दिया तो ये आपको येलो में शो करेगा। नेक्स्ट आपका है सबमिट एंड नेक्स्ट। सो सेव द सिलेक्टेड आंसर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो सबमिट एंड नेक्स्ट बटन से क्या करेंगे, आपने मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन सी है, आप श्योर है कि सी है, तो यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है फिनिश एग्जाम नाउ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल एग्जामिनेशन, जब आप कंप्लीट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद एट लास्ट आपके पास ऑप्शन आएगा फिनिश एग्जाम नाउ, जिसको कि आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो फिनिश एग्जाम नाउ बटन है उसको तब तक क्लिक नहीं करेंगे जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। बिकॉज अगर आपने फिनिश एग्जाम नाउ को क्लिक कर दिया तो आप दोबारा से एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सो यू विल नॉट बी एबल टू रीस्टार्ट योर एग्जाम आफ्टर क्लिकिंग द फिनिश एग्जाम नाउ बटन। Alright, so don't click the finish exam now button until and unless you have completed your examination and you are sure that you have to submit your examination. After clicking on the finish exam now, you will not be permitted to restart the exam again and change the options or answers of the exam that you have attempted. Alright, so exam will auto submit at the end of the examination timings. All answers which you have marked till now will be saved in this केस। सो एग्जाम जो है आपका वो अगर 4 से, मैंने कहा कि 4:30 तक 5:30 तक आपका एग्जाम चलता है, तो 5:30 पर आपका एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाएगा, खुद ही सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट नहीं भी किया है, फिनिश एग्जाम बटन को टैब क्लिक नहीं भी किया है, और जितने भी आंसर आपने क्लिक करे हैं अब तक वो सब ही सेव हो जाएंगे। ऑलराइट, सो वी विल प्रोवाइड यू अ नंबर कि फॉर टेक्निकल सपोर्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट। आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें और आफ्टर रीडिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आपको ये चेक बॉक्स मिलेगा जिसको आपको टिक करना है, आई हैव रीड ऑल द जनरल इंस्ट्रक्शंस। जब तक आप इसको टिक नहीं करेंगे आप एग्जाम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो आफ्टर एंटरिंग आफ्टर एंटरिंग आप क्या करेंगे, एग्जाम पैनल में एंटर करने के बाद, अपना एग्जाम शेड्यूल देखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट एग्जाम किया, और स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे और फिर आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और एग्जाम को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ऑन दिस स्क्रीन जनरल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन and you have to check on I have read all the general instructions, and then you have to click on the start now button. So in the beginning of this examination, student must allow the camera and microphone option on for appearing in the examination. So आपका जो examination है इसमें आपको जैसे ही आप enter करेंगे एग्जाम में start now करके, तो आपको इस टाइप की notification pop up होगी। Alright, so you have to allow your microphone and camera access for this examination, because आप पर जो इन्विजिलेशन हो रही है वो आपके कैमरा और माइक्रोफोन से होगी। अगर आप माइक्रोफोन और कैमरा को अलाउ नहीं करेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। Alright, you won't be allowed to give the examination if you will not allow your microphone and camera. आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा एग्जाम से अगर आप माइक्रोफोन और कैमरा को अलाउ नहीं करेंगे। सो यू हैव टू अलाउ दिस नोटिफिकेशन। ऑलराइट, मूविंग ऑन।
सो फॉलोइंग विल बी द स्क्रीन ऑफ क्वेश्चंस। अब जब आप अलाउ करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी क्वेश्चंस और आंसर्स की। You have to see all the questions one by one here and can choose the correct answer from the options given along with the question. So आपको इस तरीके का आपका जो है पोर्टल मिलेगा जिसमें कि आपको एग्जाम पोर्टल जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे along with options। आपको ऑप्शन चूज करना है। इधर आपको इस पैनल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 1 2 3 4, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए। ऑलराइट, और इधर आपकी पिक्चर ऐसे दिख रही होगी और यहाँ पर आ रहा होगा यू आर अंडर वेबकैम सर्वेलांस। ऑलराइट, सो टाइम ड्यूरेशन भी दी गई होगी यहाँ पे कि कितना टाइम ड्यूरेशन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको 3 पे जाना है तो आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ऑलराइट, अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया कि गॉड इज ग्रेसफुल, ऑलराइट, सो अब आपको लेकिन अनश्योर है आप कि यही आंसर है या नहीं, तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन करने पे आपको इस तरीके से लास्ट में समरी दिखाएगा कि आपने ये क्वेश्चन को मार्क किया है रिव्यू के लिए और आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको इस ऑप्शन को क्लियर करना है, अब आपको लगता है कि ग्रेसफुल नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लियर पे क्लिक कर देंगे, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है तो आप सिंपली उस ऑप्शन पर भी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ऑलराइट, इस तरीके से आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, so student may switch between the questions by just clicking on the question number giving on the right side of the page। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे या किसी और क्वेश्चन पे यहाँ से जाना है, मान लीजिए आप 4 पे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको 1 पे जाना है, तो आप सिंपली 1 पे क्लिक कर देंगे और आप डायरेक्टली 1 नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 4 से 1 पे जाना चाहते हैं, 6 पे जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली किसी भी जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है उस पर सिंपली क्लिक करें एंड यू विल लैंड ऑन दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, so to change an answer simply click the desired option button। so अगर आपको क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है तो आप सिंपली उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपको फिनिश एग्जाम नाउ का बटन तब तक प्रेस नहीं करना है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। until and unless you haven't completed your exam you are not allowed, you should not click the finish exam now button। so in case if you will click the finish exam now button you will not be permitted to restart your examination। so next is you are requested to kindly log into your examination 5 to 10 minutes before the examination to avoid the last minute hassle। last minute hassle को avoid करने के लिए आपको advise किया जाता है कि आप 5 से 10 minutes पहले अपने examination में log in कर लें। so for better view, if you want better view of your examination, it is advised that you should arrange a desktop or a laptop for a better view, all right, which should have a camera for appearing in examination। ऑलराइट, सो आपको अपना एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे व्यू के लिए, अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अरेंज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि उसमें कैमरा होना चाहिए। आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी एग्जामिनेशन अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ टू अ सुटेबल प्लेस। आपको ऐसी सुटेबल प्लेस में होना चाहिए जहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी या स्ट्रांग हो। ऑलराइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस पे गूगल क्रोम ब्राउज़र होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आपके लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस में गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टिल नहीं है तो यू आर एडवाइज कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लें। आईफोन इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन दी एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में आईफोन स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ऑलराइट,
तो आपको आईफोन से एग्जाम नहीं देना है. यू आर ओनली अलाउड टू गिव योर एग्जाम फ्रॉम द लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप विच हैज कैमरा इन इट. बिकॉज अगर आप कैमरा को अगर आपके पास कैमरा नहीं होगा फ़ोन या आपके लैपटॉप में, तो आप नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं कर पाएंगे जिसमें कि आपको अलाउ करना है कैमरा और माइक्रोफोन को यूजेज को, जिससे कि आप लॉग आउट हो जाएंगे एग्जामिनेशन से. सो ये एग्जामिनेशन जो है ये गूगल क्रोम में ही आपका ओपन होगा. अदर ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप अदर ब्राउज़र में LMS के थ्रू ये खोलें नहीं. Alright, so examination will automatically get disconnected if student will attend any incoming or outgoing call during the examination. Alright student, so अगर आप कोई भी call, for example आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और in the meanwhile आपके उसी फ़ोन पर या उसी डेस्कटॉप पर कोई कॉल आती है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपको लॉग आउट कर देगा. ऑलराइट, हाउएवर आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं, बट आपके पास जितना शेड्यूल टाइम है उतना ही टाइम आपको मिलेगा. ऑलराइट, so in the event of disconnected or log off by any reasons, student can re-log into the exam, but exam will restart from the beginning and the student will only get the remaining time. ठीक, तो अगर आपका कोई कॉल आता है और आपका जो एग्जामिनेशन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो आप दोबारा से एग्ज़ाम में री लॉग इन कर सकते हैं. आपके पास री लॉग इन की सुविधा है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो वो स्टार्ट होगा जितना टाइम उसमें रिमेनिंग बचा है उतने ही टाइम से. फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम 4 PM से स्टार्ट था और एंड होना है 5:30 PM पर. अब क्या है, आपके पास 4:30 पर कोई कॉल आया. at 4:30 you get a call. You had a conversation for 5 minutes से आपने 5 मिनट्स के लिए कॉन्वर्जेशन किया. 4:35 हो चुका है, आपने री लॉग इन किया. री लॉग इन करने पर क्या हुआ, आपके 2-3 मिनट्स लगे और अभी टाइम 4:38 है. तो अभी जो एग्ज़ाम का 1 hour 30 minutes है वो इसी तरीके से आपको मिलेगा. आपका एग्ज़ाम 5:30 पर ही एंड हो जाएगा. कोई भी एक्सटेंशन आपको टाइम में नहीं मिलेगा री लॉग इन करने पर. दिस इज क्लियर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है कि देयर विल बी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ईच एग्जामिनेशन. आपको हर एग्जाम में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको कि आपको अटेम्प्ट करना है. देयर विल बी 60 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चन. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जामिनेशन में. ऑलराइट, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा अब एग्जाम का. टाइम ड्यूरेशन आपके हर एग्जाम का 90 मिनट्स रहेगा विच मीन्स 1.5 आवर. सो 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, यानी कि 1.5 आवर मिल रहा है विच इज एम्पल टाइम टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. So candidate must complete their online examination within the stipulated time frame. There is no provision of additional time. As I am telling you again and again कि आपको stipulated time frame जो आपका scheduled time है उसी में अपने एग्जाम को खत्म करना है. आपको कोई भी additional time नहीं मिलेगा. Student cannot leave or submit the exam before 30 minutes from the start time. Alright. सो कोई भी स्टूडेंट को ये अलाउड नहीं है कि आप अपना एग्ज़ाम लीव कर सकें या सबमिट कर सकें बिफोर 30 मिनट्स. सो आपको अगर आपने लॉगिन किया है एग्ज़ाम में, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो एटलीस्ट 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट टाइम आपको रहना है. फॉर एग्जांपल 4 बजे से अगर आपका पेपर स्टार्ट है तो आप 4:30 तक उस पेपर को सबमिट नहीं कर सकते हैं या फिर लीव नहीं कर सकते हैं. एटलीस्ट 4:30 तक आपको एग्ज़ाम में रहना होगा. Duration of the exam remains unaltered irrespective of the user logging in at this correct start time or later during the examination. So जो duration है एग्जाम की वो unaltered रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. चाहे आप एग्जाम में स्टार्ट टाइम
पे करेक्ट स्टार्ट टाइम पर ही लॉग इन कर लें या फिर आप बाद में भी करें। एग्ज़ाम अगर उसका फॉर एग्जांपल 5:30 पे ख़त्म होना है तो वो 5:30 पर ही ख़त्म होगा। वेदर आप करेक्ट टाइम 4 बजे उसको लॉग इन करते हैं या फिर आप 4:15 4:15 पे लॉग इन करते हैं, और यू विल एंटर इनटू इट एट 4:30. All right, so exam duration will remain unaltered. Next, exam will auto submit at the end of the examination timings. All answers which you have marked till that time will be saved in this case. So exam जो है आपका है वो auto submit हो जाएगा at the end of the examination. जो भी आपके एग्जामिनेशन की टाइमिंग की एंड टाइम होगा उस पर आपका एग्जाम खुद ही सबमिट हो जाएगा, वेदर और नॉट आपने फिनिश एग्जाम नाउ बटन को क्लिक किया है या नहीं। और अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने जिनके क्वेश्चन के आंसर्स आपने मार्क करे हैं वो सेव हो जाएंगे। दिस इज प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन। इन्विजिलेटर विल सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। सो आपका प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि आप प्रॉपरली सर्विलांस में हैं इन्विजिलेटर के, और इन्विजिलेटर्स आपको सुपरवाइज करेंगे क्लस्टर की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में। वो आपको एबल होंगे कि वो आपको देख सकें कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉगल द टैब ऑन द ब्राउजर। सो एग्जामिनेशन के चलते टाइम आप दूसरे टैब को नहीं खोल सकते हैं ब्राउजर पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक वार्निंग शो होगी अपने एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, सो मान लीजिए ये टैब खुला है और आप चाहें कि आप दूसरा टैब खोलें, तो जैसे ही आप दूसरे टैब पे टॉगल करेंगे आपको एक वार्निंग शो हो जाएगी अपनी स्क्रीन पर, जिसको कि आपके इन्विजिलेटर्स भी देख सकते हैं एंड दे विल गिव यू वार्निंग। ऑल राइट, so if at any case the camera is switched off during the examination, student will not be allowed to appear in the exam. So अगर किसी केस में आपका कैमरा जो है वो स्विच ऑफ होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के बीच में कहीं भी, सो स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एग्जाम में अपीयर कर सके। सो you have to allow your camera to be open at all the time during the examination. So when you are giving the examination, you are advised to always switch on your camera, because if you will switch off the camera, you will not be allowed to appear in the exam. अगर आप कभी भी एग्जामिनेशन के बीच में अपने कैमरा को स्विच ऑफ करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एग्जाम में अपीयर कर सकें। कोई भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, अगर आपको किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, you can call or WhatsApp at the below contact numbers that are given to you. Alright students, so for any technical support that you need during the examination, for example if you have any problem in logging into the examination, or you're facing problems of logging in and logging out again and again, so whatsoever problem it is, for any technical support you can call on the contact numbers that are given to you at the end of these instructions. So this is all about how you have to attempt your examination which are going to be conducted in March 2022. Hope this video session has helped you in understanding that how you have to attempt your examination and what all criteria is required for the attempting the examinations. Wish you a very good luck students. Prepare well for your examinations and study well. Thank you.